Hello dear students, welcome to my video lecture. So in today's video lecture I am going to explain third type of distribution, that is normal distribution. So in normal distribution we transform variable x into variable z under the transformation. तो यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे z इक्वल्स टू x माइनस एम बाय सिग्मा. तो m डिनोट मीन वैल्यू और मीन को ही आप एवरेज भी कह सकते हैं, एंड सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन. And in previous video lecture I have already explained that standard deviation is nothing but under root of variance. अगर in case value of variance is given, then by taking square root of variance you will get standard deviation. तो इसलिए आपको ये नोट याद रखनी है. Okay. Then in normal distribution basically we find normal curve. अब normal curve किसे कहा जाता है? So graph of normal distribution is called as normal curve, and normal curve is of bell shape. So this is bell shaped curve. So this is normal curve. Okay, and this curve is symmetric about the mean. ये जो curve है, this curve is symmetric about mean with standard deviation sigma. Okay, and under this transformation z equals to x minus m by sigma, this normal curve is transformed into again new normal curve. Again it is transformed into normal curve. So under the transformation z equals to x minus m by sigma, we get again normal curve because again it is of bell shape. Okay, but जैसे कि हमने देखा था बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जो है मीन वैल्यू को सिमेट्रिक होती है, बट आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट z इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम x वेरिएबल को ही z वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं. ओके, सो दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट z इक्वल्स टू 0 विथ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड हियर स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू 1. Okay, so in this way in normal distribution we find this normal curve and we transform variable x into new variable z under this transformation. So this is about this distribution. Now with the help of this normal distribution we find probability for the given range. If it is asked to find probability between x equals to x1 to x equals to x2. Okay, so this probability can be written as, so this can be written as probability of x1 less than or equals to x less than or equals to x2. Okay, so it can be written like this. So this is a probability for the variable x in between x1 to x2. Okay, now with the help of this transformation we transform this inequality into z. ठीक है, क्या करेंगे हम? अगर आपकी फर्स्ट वैल्यू x1 है तो यहाँ पर आपको मिलेगा x1 माइनस m बाय सिग्मा, क्योंकि m और सिग्मा की वैल्यू जो है आपको प्रोवाइड की हुई रहेगी. ओके, सो इन दिस वे यू कैन फाइंड दिस वैल्यू, एंड इस वैल्यू को ही हम डिनोट करेंगे z1. सिमिलरली z2 इज, जब आप x2 के लिए फाइंड करेंगे सो x2 माइनस m अपॉन सिग्मा, सो दिस इज z2. और x वेरिएबल को ही अगर आप ट्रांसफॉर्म करते हैं देन इट विल बिकम z. ठीक है, तो दिस प्रोबेबिलिटी इज सेम एज probability of z1 less than or equals to z less than or equals to z2 using normal distribution. और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना. कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर यूज करते हैं? z इक्वल्स टू x माइनस m
upon sigma, where m denote mean value or you may say average and sigma is standard deviation. Okay, so this probability can be written as probability of z1 less than or equals to z less than or equals to z2. और अगर आप इसके लिए कर्व निकालते हैं, then that curve is again of bell shape and that bell shaped curve is called as normal curve. Okay, now how to find this probability? So in normal distribution, this probability is nothing but area between z1 to z2. This is equal to what? Area between z equals to z1 to z equals to z2. Okay, this probability is same as area between z1 and z2. और इसी को आप जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी के लिए P of z1 to z2 लिखा, वैसे एरिया के लिए हम यहाँ पर डिनोट करेंगे कैपिटल A. ध्यान में रखना है, अब कैपिटल P को ही हमने A में कन्वर्ट किया है. दैट मीन्स एरिया बिटवीन z1 less than or equals to z less than or equals to z2. Okay, so in this way, this probability in x transform into probability in z and this probability is same as area. अब हम इसके लिए नॉर्मल कर्व ड्रॉ करेंगे और नॉर्मल कर्व ड्रॉ करने के बाद एक z ट्रांसफॉर्म के लिए एक टेबल होता है, जैसे कि आप लॉगरिथमिक टेबल लॉगरिथम के लिए टेबल यूज करते थे, सेम वैसे यहाँ पर ये जो z ट्रांसफॉर्म और z वैल्यूज है, तो z वैल्यूज के लिए भी एक टेबल होता है. तो वो जो टेबल है उसका यूज करके हम यहाँ पर ये एरिया फाइंड करेंगे. ओके, एंड व्हाइल फाइंडिंग एरिया, रिमेंबर वन मोर थिंग, एरिया ऑफ दिस कंप्लीट नॉर्मल कर्व इज 1. ठीक है, और इसी नॉर्मल कर्व को भी आप कह सकते हैं, सपोज हियर इट इज z1. ओके, हाँ, दिस लाइन इज इनफाइनाइटली, मतलब ये जो लाइन है कहीं पे भी एंड नहीं होती, मतलब आपकी जो z की वैल्यूज है माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक एक्सटेंड होती है, राइट. सो रिमेंबर दिस एरिया बिटवीन माइनस इंफिनिटी लेस देन और इक्वल्स टू z लेस देन और इक्वल्स टू इंफिनिटी, मतलब ये जो कंप्लीट एरिया है शेडेड रीजन का, दिस एरिया इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. ठीक है ना, तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको एरिया लगेगा, और अगर आपको कंप्लीट नॉर्मल कर्व का अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया कितना होता है, ऑलवेज 1. और जैसे कि हमें मालूम है दिस कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट z इक्वल्स टू 0. अगर कर्व सिमेट्रिक है मतलब क्या, इसका जो हाफ पार्ट है, राइट हाफ पार्ट, उसका एरिया और लेफ्ट हैंड हाफ पार्ट का जो एरिया है, बोथ एरियाज आर सेम. और अगर कंप्लीट पार्ट का एरिया 1 है, तो अगर मैंने सिर्फ हाफ पार्ट कंसिडर किया तो उसका एरिया कितना रहेगा, हाफ ऑफ 1, दैट मीन्स 1/2, और 1/2 मीन्स 0.5. इसलिए अगर आप सिर्फ हाफ पार्ट का एरिया कंसिडर करते हैं, देन दिस एरिया इज 0.5. अगेन रिमेनिंग हाफ पार्ट अगर आप कंसिडर करते हैं, दिस रिमेनिंग हाफ पार्ट, तो इसका भी एरिया कितना होता है, 0.5. और टोटल मिला के एरिया कितना बनेगा, 1. ओके, एंड हिंस एरिया बिटवीन 0 लेस देन और इक्वल टू z लेस देन और इक्वल टू इंफिनिटी, 0 से लेकर इंफिनिटी मतलब पॉजिटिव हाफ पार्ट, सो दिस एरिया इज 0.5. एंड एरिया बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू 0 इज अगेन 0.5. ओके, और अगर आपको दिया है एरिया, if it is area where z is less than or equals to z2, area of z less than or equals to z2, that means, so this is nothing but area between 0 less than or equals to z less than or equals to z2. अगर आपको यहाँ पर लोअर बॉन्ड मतलब इसकी जो लोअर वैल्यू है, if that value is not given, then it is always equals to 0. Okay, so in this way
we can draw the normal curve, and accordingly we find required areas, but you must refer these areas. Area of normal curve is always 1, area of half normal curve is 0.5, and remaining half parts area is again 0.5. Okay, now I will take few examples of normal distribution. So example is, in the test of 2000 bulbs, it was found that the life of electric bulbs was normally distributed. तो यहाँ पर हमें normal distribution use करना है with an average life of 2040 hours. तो यहाँ पर जो है हमें बल्ब की average life given है. Average life means here we have given mean value. तो mean value कितनी है? 2040 hours. Okay. So here average means what? M equals to 2040 hours. Then and standard deviation of 60 hours. So standard deviation means sigma, and it is 60 hours. Estimate the number of bulbs likely to burn for more than 2150 hours. तो यहाँ पर हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2150 hours. तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वेरिएबल x के लिए, जैसे कि अगर आप एग्जांपल केयरफुली रीड करते हैं तो यहाँ पर हमें बल्ब का बर्निंग आवर्स दिया है. ओके, मीन की वैल्यू आवर्स में गिवन है. Standard deviation is again in terms of hours. Okay, so these hours represent burning hours of a single bulb. ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंगल बल्ब के लिए ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि दैट बल्ब burn for more than 2150 hours. उसके बाद हमारे पास ऐसे कितने बल्ब है? टोटल 2000 बल्ब है. उसका जो भी आंसर मिलेगा, इस प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर मिलेगा उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 बल्ब्स के साथ, बिकॉज दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर सिंगल बल्ब. आफ्टरवर्ड्स वी विल फाइंड प्रोबेबिलिटी फॉर 2000 बल्ब्स. ओके, तो यहाँ पर आपका जो x रहेगा दैट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बर्निंग आवर्स ऑफ बल्ब. ओके, so let x be the number of hours or number of burning hours of a bulb, single bulb के लिए. Okay, so this is value of x. Now with the help of normal distribution we find probability of more than 2150 hours. तो x अगर नंबर ऑफ आवर्स रिप्रेजेंट करता है तो मोर देन 2150 hours, मतलब x की वैल्यू मोर देन मीन्स ग्रेटर देन 2150. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2150. So this is our aim, and as we know this probability is same as probability of z greater than. अब ये z कैसे मिलेगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x के लिए ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे x माइनस एम अपॉन सिग्मा. तो जैसे कि m की वैल्यू अवेलेबल है, सिग्मा की वैल्यू भी अपने पास अवेलेबल है. ओके, सो दिस z इज ग्रेटर देन, अगेन यहाँ पर हम x मतलब 2150 माइनस m की वैल्यू रख देंगे, सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे. ओके, सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, एंड दिस प्रोबेबिलिटी इज सेम एज एरिया. दिस प्रोबेबिलिटी इज सेम एज एरिया, एंड अकॉर्डिंगली वी फाइंड रिक्वायर्ड. हाँ, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक डेटा प्रोवाइड किया हुआ है. तो यहाँ पर हमें गिवन है एरिया अगेंस्ट z इक्वल्स टू 1.83. दिस एरिया इज 0.4664 also. For z equals to 1.5 we have given area. For z equals to 2
again here we have given area. Okay, now this is area against z equals to 1.83, means actually this is area between 0 less than z less than 1.83. okay, ये वाली जो वैल्यू है, so this is area for 0 less than z less than 1.83 and this area is 0.4664. okay, so यहाँ पर हम जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए उसे हम फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट इसमें हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज बर्न फॉर मोर देन 2150 आवर्स. सो दिस प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2150. ओके, सो नाउ वी यूज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना मतलब हमें यहाँ पर यूज करना है ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो वी नो दैट z equals to x minus m upon sigma, that is x minus m की वैल्यू कितनी है 2040 अपॉन सिग्मा है 60. ओके, अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे कितनी है 2150. therefore z equals to 2150 minus 2040 अपॉन 60. हम इसे इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट करेंगे क्योंकि आगे भी हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. ओके, नाउ दिस सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइडिंग बाय 60 यू विल गेट 1.83. ठीक है, अब हम इस प्रोबेबिलिटी को ही लिख सकते हैं. देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, अभी अभी हमने लिखा. So it is probability of x greater than 2150, which is same as probability of z greater than अब 2150 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू क्या है 1.83. Okay, now first of all we draw the normal curve. तो यहाँ पर नॉर्मल कर्व लेंगे. तो यहाँ पर सेंटर में आता है z इक्वल्स टू 0. दिस इज द नॉर्मल कर्व. तो यहाँ पर अपना जो एरिया है, हाँ, दिस इज सेम एज एरिया फॉर z ग्रेटर देन 1.83. तो दिस मिड पॉइंट इज z इक्वल टू 0. तो z पॉइंट 1.83 नियर अबाउट यहाँ पर आएगा. सपोज हियर इट इज z इक्वल्स टू 1.83. ओके, तो अपना जो रिक्वायर्ड पार्ट है या रिक्वायर्ड एरिया है उसे हम शेडेड कर लेंगे. तो एरिया where z is greater than 1.83, so here it is 1.83, so z is greater than. तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस डॉटेड लाइन से अगर आप राइट साइड में जाते हैं then z is greater than 1.83. So our aim is to find area of this shaded region. अब इसका एरिया हमें कैसे मिलेगा, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ कौन सी वैल्यू है एरिया अगेंस्ट z इक्वल्स टू 1.83, मींस वी हैव गिवन दिस एरिया. और इस एरिया की वैल्यू सिर्फ इतने पोर्शन की का एरिया हमें मालूम है और इसका एरिया कितना दिया है 0.4664. Only area of this much portion is 0.4664. तो बचे हुए पार्ट का एरिया कैसे मिलेगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कंप्लीट नॉर्मल कर्व का एरिया कितना होता है 1. तो अगर आप इस हाफ पार्ट का एरिया कंसिडर करते हैं तो इट इज 0.5. और अगर इस हाफ पार्ट को देखिए, इस ये वाला हाफ पार्ट कैसे मिलेगा, दिस एरिया प्लस दिस एरिया. ठीक है, सो दिस 0.5 इज इक्वल्स टू दिस एरिया. इसका एरिया कितना है 0.4664. ठीक है, प्लस ये वाला जो एरिया है प्लस दिस एरिया, दिस इज अननोन वैल्यू. तो आप इजीली इस a की वैल्यू निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे, सो दिस a इज इक्वल्स टू, अगर इस टर्म को आप इधर शिफ्ट करते हैं तो a की वैल्यू मिलेगी. सो a इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस 0.4664. मतलब जो आपका शेडेड पार्ट है, शेडेड पार्ट का एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ दिस हाफ पार्ट माइनस एरिया ऑफ दिस
known region, right? So this same area can be written as, so which is equals to area between 0 to infinity minus area between 0 to 1.83. राइट, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 0 टू इंफिनिटी 0.5 माइनस 0 टू 1.83 की वैल्यू है 0.4664. अगर आप ये सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.0336. So required probability is 0.0336 आवर्स. एक्चुअली प्रोबेबिलिटी को हम यूनिट नहीं देते, so this value is only 0.0336 and this is the probability for single bulb. और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अपने पास कितने बल्ब है, 2000 बल्ब है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 बल्ब से. ओके, therefore required number of bulbs equals to 2000 multiplied by 0.0336 and this value is 67.2. but number of bulbs कभी decimals में नहीं रहेंगे, so is approximately equals to 67 bulbs. So there are approximately 67 bulbs which are burning more than 2150 hours. Okay, now we move towards our second part. तो second part में हमें पूछा है कि find the probability of less than 1950 hours. Second part क्या है? So probability of burning bulb for less than 1950 hours. Okay. So less than 1950, that means probability of Z less than x less than 1950. फिर से हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे वेरिएबल Z में. सो Z लेस देन, यहाँ पर आपको मिलेगा 1950 माइनस, यहाँ पर इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1950 माइनस 2040 अपॉन 60. ठीक है, और अगर आप ये वैल्यू निकालते हैं तो आपको वैल्यू मिलेगी, so this value is minus 1.5. So it is probability of Z less than minus 1.5. So this value is Z, probability of Z less than minus 1.5. Now हम इसके लिए नॉर्मल कर्व निकालेंगे. तो ये नॉर्मल कर्व है, ये जो मिड पॉइंट है दिस इज Z इक्वल टू 0. तो Z लेस देन माइनस 1.5, तो माइनस 1.5 कहाँ आएगा, इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में. सो सपोज हियर इट इज Z इक्वल टू माइनस 1.5 और Z की वैल्यू लेसर कहाँ पे रहेगी, इस माइनस 1.5 से लेफ्ट साइड में. सो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट Z लेस देन माइनस 1.5. सो आवर एम इज टू फाइंड दिस एरिया. तो जैसे कि हमने पिछले इसमें एरिया निकाला था, सेम वे से यहाँ पर एरिया निकालेंगे, क्योंकि हमें इस हाफ पार्ट का एरिया मालूम है. इस हाफ पार्ट से अगर आप ये वाला पार्ट सबट्रैक्ट करते हैं तो हमें ये एरिया मिलेगा. सो इस हाफ पार्ट के एरिया को ही हम लिख सकते हैं. हाँ, इस प्रोबेबिलिटी को आप सबसे पहले एरिया में लेंगे. हाँ, तो इस हाफ पार्ट का एरिया आएगा एरिया बिटवीन माइनस इंफिनिटी लेस देन Z लेस देन 0 माइनस एरिया बिटवीन, ये हो
हो गया आपका हाफ पार्ट माइनस इंफिनिटी टू 0। अब ये वाला पार्ट यहाँ से माइनस करते हैं, इस पार्ट को ही आप लिख सकते हैं माइनस 1.5 लेस देन z लेस देन 0, विच इज इक्वल टू, हाँ इस हाफ पार्ट का एरिया कितना होता है 0.5 माइनस ये जो है एरिया बिटवीन माइनस 1.5 टू 0 है, बट हमें यहाँ पर एरिया अगेंस्ट 1.5 गिवन है। एरिया अगेंस्ट 1.5 मतलब 0 लेस देन z लेस देन 1.5 का एरिया मालूम है, राइट। मतलब अगर यहाँ पर 1.5 है तो ये वाला एरिया हमें मालूम है। एंड एज वी नो एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, राइट। इसलिए ये जो 0.1.5 का एरिया है, दिस एरिया इज सेम एज माइनस 1.5 टू 0 का एरिया। तो आप इसी एरिया को लिख सकते हैं एरिया ऑफ 0 to 1.5, दैट इज 0 लेस देन z लेस देन 1.5, ठीक है। अब दिस एरिया इज गिवन दैट इज 0.4332। और इनकी सब्ट्रैक्शन से आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मिलेगी। सो दिस सब्ट्रैक्शन इज 0.0668, 0.0668। अब हमें 2000 बल्ब्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब नंबर ऑफ बल्ब्स निकालने हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बल्ब्स equals to 2000 into 0.0668, and this value is 133.6. Sorry, 133.6, and this is approximately equals to, you may write 133 or write 134, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो approximately 133 bulbs, ओके। एंड लास्टली आपको पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1920 आवर्स एंड लेस देन 2160 आवर। तो अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। सो प्रोबेबिलिटी इन थर्ड पार्ट इज 1920 लेस देन x लेस देन 2160। तो इसके लिए हम z ट्रांसफॉर्म अगर अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन z लेस देन 2। देन दिस प्रोबेबिलिटी इज सेम एज एरिया बिटवीन -2 लेस देन z लेस देन 2। और इसके लिए नॉर्मल कर्व आएगी दिस वन, एंड आवर रिक्वायर्ड एरिया लाइज बिटवीन -2 to +2। सो this shaded region represent required area, and due to symmetry this curve is symmetric about this z equals to 0, so area of this half part is same as area of this second half part. So this complete area can be written as 2 times area of this half part. So it can be written as 2 times area between 0 to 2। और जैसे कि हमें 0 to 2 के लिए एरिया गिवन है, इट इज 0.4772। So 2 into the 0.4772 gives us 0.9544. This is the probability for single bulb. Now for 2000 bulb, so required number of bulb is 2000 into this probability. So this value is 1908.8, or approximately you may write 1909 bulbs. So in this way we apply normal distribution. So with this I stop my video lecture. Thank you very much.